So we are starting a new journey, no doubt about it. And so for your batch, for your new batch, we have a new Telegram channel, so you can join. Fine. So you can join this, and gradually it would be more interactive. Fine. So I invite you to join, right, this group also, this channel also. Fine, bache. So today, introduction, right? We will go for a general introductory session. So coming 3 session would be a shorter session, an introductory session. We will try to know this history optional, and you would be familiar with the approach also, that how we are going to take up this course, what all you have to read, how you can approach this class, how you can use this class. So all this we are going to discuss in these 3 sessions. Fine. So idea is shorter session, but 3 introductory session, and then we will be entering into the topic in the next week. Fine. तो हम लोग टॉपिक में इंटर करेंगे नेक्स्ट वीक में, लेकिन ये पहला 3 सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, राइट। और कोशिश की जाएगी कि आप फैमिलियर हो जाएं इस सब्जेक्ट के साथ, टीचिंग के साथ, अप्रोच इस एग्जामिनेशन में क्या हो उसके साथ। इज इट फाइन? एंड इट्स ए इंग्लिश बैच, it's not pure English batch, so we will be mixing Hindi and English, but notes would be in English only, right? So we would be using English word, we would be, right, notes would be provided in English only, but yes, communication, right, understanding would be in Hindi. तो हम हिंदी में भी समझेंगे, हम हिंदी में भी बात करेंगे। डन। सो गुड आफ्टरनून नीसू, है ना। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे राइट, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, है ना बच्चे। धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाएंगे। डन। तो वी वुड बी इंट्रोड्यूसिंग, राइट, हिस्ट्री ऑप्शनल। इज इट फाइन? चलेगा? ये बात समझ गए मेरी कि अगला जो 3 सेशन होने वाला है, छोटा सेशन जो होने वाला है अगला 3, वो इंट्रोडक्शन का होगा। ठीक बात, समझ में आई बात? तो सबसे पहले अगर आप इंटरैक्ट करें, अगर आप इंटरैक्ट करने के लिए तैयार हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि राइट, आज आप लोग जो चैट के लिए तैयार है, बहुत लोग चैट के लिए तैयार नहीं होते, जो लोग चैट के लिए तैयार है, आपका बैकग्राउंड क्या है? व्हाट्स योर बैकग्राउंड, लाइक व्हाई, राइट, you are considering history or you have already considered history? तो सिद्धांत, निशु, समीर, राइट, आपका बैकग्राउंड क्या है बच्चे? राइट, आप क्या कर रहे हैं? आप हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, या आपने ले लिया है, ये और भी अच्छी बात है। तो व्हाट्स योर बैकग्राउंड? कैन यू इंटरैक्ट? कैन यू इंटरैक्ट? थोड़ा इंटरैक्ट कर लें, अगर आप बुरा ना माने तो, है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो। राइट, हम इन 3 राइट सेशन में केवल जानने वाले हैं सब्जेक्ट को, एक दूसरे को। देन वी विल बी एंटरिंग इनटू द टॉपिक। यस, ग्रेजुएशन डन इन हिस्ट्री, वारिस। फ्रॉम वेयर बच्चे? वारिस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और so Waris already graduate in history, well done. तो वारिस, राइट, हमारी मदद भी करेंगे, राइट, बिकॉज ही ऑलरेडी हैड बैकग्राउंड, वेल डन। समीर, यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, बट व्हाट्स योर बैकग्राउंड बच्चे? सो इट इज ऑलवेज गुड यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, बट व्हाट्स योर बैकग्राउंड समीर? kindly interact, right, because once you start the topic,
we would not be in a position to interact, right? Of course, interaction would be there, but academic interaction would be there, है ना? Academic बातें होंगी फिर. सिद्धांत engineering, well done, great. Engineers are, right, capable of handling, right, this exam in a better manner. Correct, Siddhant from Jammu and Kashmir. Okay, well, Waris, बहुत अच्छी बात है बच्चे. And rest, Samir is English literature, BA. Oh, you have already done graduation. Okay, good. English literature, fine, बच्चे. Right, but our course is in English, right? I hope you will not mind it and you must know it, because I cannot only continue with English because it's a, right, English course, right? तो मुझे हिंदी में भी, right, बात करनी होंगी, right? And of course, the academic discussion would be, of course, in English also. Fine. Yes, rest, not ready to interact, right? बातें नहीं करोगे कुछ, केवल सुनोगे मेरी. अरे कुछ तो बात करो, बताओ. गुड इवनिंग संभव, एक्साइटेड. यस, आई एम इक्वली एक्साइटेड. संभव, राइट? व्हाट्स योर बैकग्राउंड बच्चे? व्हाट्स योर बैकग्राउंड? ओके, सिद्धांत, ग्रेट टू नो दैट. So Siddhant is interacting, Sameer is interacting, Waris also interacted. So great to have you, right? Anuj, postgraduate in geography, but your interest is in history. Oh God, Anuj, oh, so nice of you. Post-graduation in geography. Yes. राइट, हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे. बिल्कुल मुझे हिंदी, राइट, सरल ही आती है बच्चे. राइट, आई एम नॉट दैट गुड. फाइन, राइट. वारिस, हम लोग हिंदी के सरल शब्दों में राइट, सरल शब्दों. ओ गॉड, ओके, फाइन. संभव, you have already done graduation, BCom. Okay, BCom. Sambhav, you are commerce graduate and still you have interest in history. Good. See, we have science student, we have, right, geography student, commerce student, history graduate also from Jammu Kashmir. Right, rest, I'm still waiting. Right, kindly, come out, right, and interact बच्चे. right, I will wait. Probably they are thinking, है ना? Some of you thinking we should interact or not. Sambhav is from Agra. Well done, बच्चे. Agra, so very near to Delhi, so very close. Okay, fine, no problem. Some of you, right now not ready to interact. Sameer, okay, you are from Karnataka. Great, Sameer, right, as this is a English batch, I have to use Hindi also. So sometime I would be explaining in Hindi. So hope you will tolerate me. Sameer, right, you are good enough, right, in Hindi, right? Of course we would be writing in English and all, right? लेकिन हिंदी मैं यूज करूंगा because it's officially English batch. समीर, हिंदी थोड़ी बहुत समझते हो? I hope Karnataka is, right, okay with, right, some Hindi and all, okay, or not? Yes.
Okay, good, fine. So I would not waste your time, and we are starting with okay, you know little bit Hindi. Fine, bache, no problem. Right, as right, officially it is a English batch, so I have to use Hindi. Uh, Originally, right, we never use Hindi, right? It's a generally English medium class only, but in English batches, right, Hindi is also required. Done. So we are introducing with history optional, and great to have you. So history optional, as you know, in optional we have two papers, 500 marks. You know this. So in optional we have two papers and 500 marks, 250 each. We have paper 1 and we have paper 2. Fine. Done, bache. So you have paper 1 and you have paper 2. ये बात आपको पता है कि दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. इन पेपर 1 you have ancient India in section A and section B is medieval India. And in paper 2 you have modern India and some post independence topics also, 3 topics of post independence. So you have modern India and you have world history. Section B is world history, and you have 12 topics of world history. So you have paper 1, you have paper 2, ancient India, you have 12 topics in ancient India. In medieval India syllabus you have 12 topics, so 24 topics you have in paper 1. And in paper 2 you have modern India, 15 topics. It's a, right, slightly big, right, area. And then section B, world history, 12 topics. Done, बच्चे. तो ये बात तो क्लियर है कि हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस में दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. एंशियंट मिडिएवल पेपर 1 में होगा, और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस ये पेपर 2 में होगा. डन. और हमारा सिलेबस बड़ी डिफाइंड है, बहुत right, properly written hai, and you have mentioned, right, you can say they have mentioned these topics. So don't you, right, prepare ancient India, medieval India, modern India, world history for GS. अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी लेते हैं, इवन फॉर जनरल स्टडीज, फॉर GS ऑल्सो, we have to prepare ancient, we have to prepare medieval, yes or no? You have to prepare modern India, you have to prepare post independence, you have to prepare world history. है ना बच्चे, करेक्ट और नॉट? अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी पढ़ें, सपोज इफ यू आर टेकिंग एनी ऑप्शनल, नॉट हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री ना भी पढ़ें, हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी लें, तो भी एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे, तो भी मिडिवल इंडिया करेंगे, एंड इवन इन main examination also they started asking question from ancient and medieval. They are asking question from modern in main examination. They are asking question from post independence in main examination. They are asking world history in main examination. Right? तो ये बात तो बिल्कुल सही है अनुज. क्या ये बात तो बिल्कुल सही है निशु कि जीएस में भी आपको एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न
पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है ना। तो केवल, है ना सिद्धांत, केवल आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसको पढ़ ले, you are already preparing it for main examination. So if you are revising ancient, medieval, modern for prelims only, your job is done. And do you know one thing? In history optional, we are also covering culture. You have to read culture. So in history optional, in ancient and medieval, we are covering culture part also, cultural dimension also of different period. Fine. So I hope you all understand this, that history optional, when you are taking, you can save time. Fine. And once your optional is prepared, you don't have to prepare GS for main examination. Only for preliminary you have to practice question. है ना सिद्धांत, केवल प्रिलिमिनरी के लिए, जीएस के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन रिवाइज करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस की, अदरवाइज आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, Is it fine? You can save time. Correct? Done. So, if you have already selected this optional, so it's a good decision. I welcome you for taking this decision. Yes, only for factual data you have to prepare, only for factual data. So you can take up any factual compilation, Siddhant. है ना Siddhant? You can take some factual compilation and you can revise and you can practice objective question. Only thing you have to do is you have to practice objective question. That's it. So you can save time for current affairs, you can save time for different areas, international relation, internal security, ethics, geography, polity, you can save time. So this is the greatest advantage you have regarding history optional. So it's a very good decision. Excellent decision. And once, you are, once you have joined any course and they are teaching you for GS also, so it will be helping you in your optional. It will be helping you in optional also. Fine. अगर आप GS का भी कोर्स कर रहे हो और GS में भी एंशिएंट पढ़ाया जा रहा है, मिडिवल पढ़ाया जा रहा है, मॉडर्न पढ़ाया जा रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, तो वाह, बहुत अच्छी बात है, संभव रिवीजन हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा. तो अगर GS में भी इसको आपके क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है तो आपका ऑप्शनल और बेटर हो रहा है. फाइन. सो इफ यू हैव डन इट, जनरल स्टडीज, if you have done it, so your base is already prepared. है ना सिद्धांत? You have already a good base and you just have to prepare, this optional for examination. ओवरऑल आइडिया आपके पास ऑलरेडी होगी. अगर आपने जीएस ऑलरेडी किया हुआ है या आप ऑलरेडी हिस्ट्री ग्रेजुएट हो, जैसे वारिस है, वारिस ने जम्मू कश्मीर से किया हुआ है, संभव ने जीएस सिलेबस कवर कर लिया है, तो ऑलरेडी आपका जीएस कंप्लीट है, जीएस आपका काम किया हुआ है, तो यू हैव ऑलरेडी डन इट, यू हैव ऑलरेडी द बेसिक पार्ट आपने कर लिया है ना. केवल ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, एनीहाउ. सो दिस आइडिया इज ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, I am going to elaborate in our introductory session ancient India, a brief idea about the syllabus,
medieval India, a brief idea about the syllabus, modern India, brief idea about the syllabus, and world history, brief idea about syllabus. तो हम क्या करने वाले हैं, हम एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री सबका सिलेबस क्या है ऑप्शनल का, उसके बारे में ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं, उसके बारे में सजेस्टेड रीडिंग क्या होनी चाहिए उसको जानने वाले हैं, है ना। तो हम सारे टॉपिक का ब्रीफ आइडिया लेंगे। जैसे आज हम एंशियंट इंडिया की बात करेंगे, कल हम मिडेवल की बात करेंगे, मॉडर्न की बात करेंगे, परसों हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, और फिर हम शुरुआत करेंगे राइट नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। फाइन, तो दैट वुड बी मोर बेटर अप्रोच। फाइन, नाउ सो इन पेपर वन, सपोज कमिंग टू पेपर वन, paper 1, you have two sections, section A and then you have section B. Section A is ancient India, you must be knowing it. Ancient India. Section B is medieval India. And in section A you have 4 questions, 1, 2, 3, 4, and section B you have 4 questions, 1, 2, 3 and 4. Fine. So in paper 1 they ask you 8 questions and you have to write 5 questions. संभव, मेरी बात समझ रहे हो? सिद्धांत, तो पेपर में वो कितने क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? पेपर में वो कितने क्वेश्चन पूछेंगे? आपको एक पेपर में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। और 8 में से कितने लिखने हैं आपने? 5। 5 क्वेश्चन आपने लिखने हैं। आपने 3 क्वेश्चन को छोड़ना है। इसका क्या मतलब हुआ? Right. I would be suggesting, don't worry, I would be suggesting book also, है ना? So in these introductory session we are going to do that. We would be doing all this. So मुझे बताओ, out of 8 question you have to write only 5. 3 question you can leave. What it indicates? What is your take? What is your analysis on this? इससे क्या पता चलता है बच्चे? ऑप्शनल में 4 क्वेश्चन एक सेक्शन से, 4 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन से, आपको 5 करने हैं, आपको 3 छोड़ना है। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या आइडिया मिलता है आपको? व्हाट इज योर एनालिसिस ऑफ इट? यू डोंट हैव टू राइट ऑल क्वेश्चन, यू हैव टू राइट ओनली 5. यस, टेल मी। अरे बताओ। राइट, अरे बता दो। राइट, इन इंट्रोडक्टरी क्लास वी वुड बी इंटरैक्टिंग ओनली। So 4 questions from ancient, 4 from medieval. You have to write 5 questions. What it indicates? What is your analysis on that? So you have to choose better question. Fine, okay, and more, and more. Something more. कुछ तो बताओ। सारे क्वेश्चन नहीं लिखने। You don't have to write all. You have to write 5 questions.
So don't you think that it is easy to handle? No, it is not that easy. Prepared question you can choose, prepared question, right? Prepared area, you can prepare some area in a better manner. Sambhav, can we say this? Suppose you have good interest in ancient, you have better understanding of medieval, suppose. So you can write more question from medieval, you can write less question from ancient. Is it possible or not? Suppose ancient में आपका इंटरेस्ट सपोज ज्यादा है तो यू कैन राइट मोर क्वेश्चन फ्रॉम एंशियंट. सपोज मिडिवल में आपका इंटरेस्ट और प्रिपरेशन ज्यादा है, यू कैन राइट मोर क्वेश्चन फ्रॉम मिडिवल. Yes? So this kind of freedom you have. This kind of freedom you have. But, see the problem. But, question number 1 and question number 1 here, both are compulsory. Both are compulsory. You have to write it. It's a mandatory. So, question number 1 is compulsory. Question number 1 of medieval India is compulsory. Yes. So, good afternoon, Subhaz Malik. Welcome, bache. Subhaz. So, we are just introducing our optional. है ना बच्चे? So, question number 1 is compulsory. You have to write it at any cost. It's not that you will write all question from medieval or all question from ancient. One question from ancient, one question from medieval is must. Fine. And this question is map based question. Map based question. And the second challenge is all these questions have sub questions. Suppose 2 A, B, C. Suppose 2 A, B and C. For example, 10 marks, 20 marks, 20 marks, total 50 marks. One question 50 marks. Even map based question is 50 marks. So you have to write 50 marks question. One question is 50 marks. But one question had 3 questions. A, B, C. Shorter one sometime, right? 15, 15, 20. Like that. Yes. First question is map based question. Are you getting it? बच्चे चैलेंज समझ में आई? फ्रीडम क्या है आपको? फ्रीडम ये है वारिस that you have to write 5 questions out of 8. But the problem is, the challenge is the first question and the 4th, 5th question, medieval India first question is challenging because it's a compulsory question. One question 50 marks. And in all these questions you have sub question. सिद्धांत करेक्ट. हर एक क्वेश्चन में A, B, C, कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, like that. So challenge, are you getting it? So they are asking A, B, C. So don't you think that you have to prepare the entire syllabus? And the first question is map based question. क्या वारिस, क्या आपको नहीं लगता कि पूरा सिलेबस करना पड़ेगा? अदरवाइज क्या प्रॉब्लम होगी? सपोज क्वेश्चन नंबर 2 you know A and B, you don't know C. Suppose question number 3 you know B and C, you don't know A. Question number 4 A you know, B and C you don't know. बच्चे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मामला फंसेगा. क्यों मामला फंसता है? क्यों मामला फंसता है? मामला फंसता है क्योंकि वारिस, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह नहीं होगा. इसमें कोई भी छोटा टॉपिक, राइट, इट कैन बी आस्क्ड एज 10 मार्क्स क्वेश्चन. एनी स्मॉलर टॉपिक,
Any smaller topic can be asked as short question, 10 marks question. Any smaller topic. So, we have to prepare entire syllabus. I hope you are getting the point. हमारे पास फ्रीडम है चूज करने का, लेकिन हमें पूरे सिलेबस पर काम करना पड़ेगा. And there is a syllabus. There is a syllabus. Am I right or wrong? हमारा पहला स्ट्रेटजी क्या होगा? What would be our first strategy? You have to prepare entire syllabus. It's not like university exam. Of course, they are asking only 5 questions and right 8 questions, and you have to write 5. But there are divisions. There are divisions A, B, C. So the first strategy is anyhow you have to complete the syllabus. You have to prepare all the topics of the syllabus. हमें सिलेबस के सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा. करेक्ट? Are you getting my point? So strategy number 1 for civil services examination. Civil services examination. पहली स्ट्रेटजी, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, यू हैव टू प्रिपेयर इंटायर सिलेबस. कोई भी टॉपिक एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है. राइट? कोई भी सब टॉपिक एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है. फाइन? होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. राइट? एंड in ancient India, the biggest challenge is map based question. Just try to understand, bache, map based question. Right? So, in ancient India, the first question, compulsory question, is map based question. What they are doing, they are giving you a map. Map is given and 20 sites are located. Right? And you have to recognize the location. Suppose 1, 2, 20. You have to recognize the location. Suppose they are saying हड़प्पन साइट, तो क्या करना है आपने? यू हैव टू लोकेट इट, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट. ये हड़प्पन साइट कौन सा है? राइट? दे आर गिविंग यू मैनी थीम्स. सपोज टेम्पल साइट, सपोज नियोलिथिक साइट, suppose inscriptional site, right? Suppose site known for painting, rock painting, suppose. तो इस तरीके से आपको एक मैप दिया जाएगा. उस इंडिया के मैप में आपको 20 प्लेसेस मार्क कर दिया जाएगा. मार्क रहेगा 1, 2, 3, 4 मार्क रहेगा. आपको हिंट दिया जाएगा कि ये हड़प्पन साइट है, ये टेम्पल साइट है, ये नियोलिथिक साइट है, ये इंस्क्रिप्शनल साइट है. आपको क्या करना है? आपको रिकॉग्नाइज करना है. यू हैव टू रिकॉग्नाइज देम. सपोज आपने रिकॉग्नाइज कर दिया ये हड़प्पन साइट लोथल है. Then you have to write 30 words on them. Are you getting my point? So, जो एंशियंट इंडिया का पहला क्वेश्चन होगा वो मैप बेस्ड होगा. आपको एक मैप ऑलरेडी दिया जाएगा. आपको मैप नहीं बनाना. संभव, वारिस, आपको मैप नहीं बनाना बच्चे, आपको मैप नहीं बनाना है. मैप ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा. मैप में ऑलरेडी मार्क किया हुआ रहेगा साइट.
और उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है और उसके बारे में 30 वर्ड्स लिखना है। आपको उसके बारे में 30 वर्ड्स लिखना है। 30 वर्ड्स, राइट। बहुत आसान होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगी। अगर आप रिकॉग्नाइज आपने कर लिया है तो यू हैव टू राइट 30 वर्ड्स ऑन देम। सो दिस मैप बेस्ड क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 marks, 20 sides. You have to write, you have to recognize, and you have to write 30 words. Fine. तो हमारी जो सबसे मेजर चैलेंज होगी एंशिएंट इंडिया में, वो चैलेंज होगी हमें मैप को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करते रहना पड़ेगा, है ना। हमें खुद नहीं लोकेट करना है उसको, हमें रिकॉग्नाइज करना है, हमें पहचानना है कि अच्छा ये तो लोथल है, अच्छा ये तो सांची है, अच्छा ये तो बुरजाहोम है ना। हमें पहचानना होगा और फिर उसके बारे में हमें 30 वर्ड लिखना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक टॉपिक में मैप को ध्यान देंगे, हर एक टॉपिक में मैप को ध्यान देंगे। जितने भी मैप रिलेटेड साइट्स होंगी हम उस पर अलग से काम करेंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। फाइन। तो हम लोग दो काम करने वाले हैं बच्चे, एक पूरे सिलेबस पे काम करेंगे, राइट, एंशिएंट इंडिया में। दूसरा क्या काम करने वाले हैं, हम मैप, हमारी प्रायोरिटी होगी, हम मैप को प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में भी मैप साइट्स को हाईलाइट करेंगे। Is that fine? Two important things we will do. One, we will try to cover all the topics of the syllabus. And second, we will focus on map, क्योंकि हमें मैप केवल रिकॉग्नाइज करनी है ना, और हमें उसके बारे में 30 वर्ड्स लिखना है। अच्छा ये बताओ कि मैप तो चैलेंजिंग है, लेकिन मैप अगर आपने सही से रिकॉग्नाइज कर दिया तो क्या यह ट्रम्प कार्ड नहीं हो सकता? क्या आपका परसेंटेज बढ़ नहीं जाएगा? यू कैन स्कोर 80% इन मैप, पॉसिबल और नॉट? मैप बेस्ड क्वेश्चन में यू कैन स्कोर 80%, तो आपका परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। यस और नो, यू टेल मी। मैप हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? So we have to convert this challenge as an opportunity. हमें इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होगा। Is that fine? Are you getting it? Done? So एंशिएंट इंडिया में दो इंपॉर्टेंट और ओवरऑल दो इंपॉर्टेंट चैलेंज यू हैव टू अंडरस्टैंड इन पेपर वन, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक, एंड सेकेंड वी हैव टू फोकस ऑन मैप। है ना बच्चे, हम जबरदस्ती करेंगे, हम लोग जबरदस्ती प्रैक्टिस करेंगे मैप का, हम लोग छोड़ेंगे नहीं मैप को, हम लोग मैप को छोड़ने वाले में से नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, है ना। आपसे जबरदस्ती रिवाइज करवाएंगे, जबरदस्ती पूछेंगे कि हां ये बताओ ये साइट कौन सा है ना। आप देखोगे गुजरात में कौन कौन सा साइट है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा साइट है, राइट। सो this in this manner we will try to cover it. Fine. Now, okay, fine. So Suraj is asking that how many months it will take to complete. Fine. बच्चे just try to understand. In ancient India, it will take, right, around 45 sessions. 45 sessions. In medieval India also, it will take around, right, you can say 35 sessions. 35 to 40 sessions. Modern India also, you will say, right, around, because 15 topics are there, so around 40 sessions. And world history also, you can say, right, so around
world history, right, syllabus is limited, so around you can say 35 or 30 session you can keep, 30 session you can keep. So total, if you can see, 150 around sessions, 150 around sessions. Suraj, I answered you, right? Fine. So around 150 session. So as in 1 week we have 5 session, so it will take around, right, minimum 7 months, right, 7 months. History optional, it will take around 7 months. Fine, Suraj. Sometimes you have some break also. So minimum 7 months, right, it will take. 7 to 8 months it will take. So 150 around session we have to do it. Why more classes in ancient? Because it includes map practice also. It includes map also. So therefore more classes on, right, ancient. Is that correct, Suraj? Done. So history generally take, and in GS also you go for a bigger duration session to complete history. So in optional also we generally take, right, around 150 session to complete the syllabus. Is that fine, Suraj? Kya Suraj? Suraj Malik. Is it done, Suraj? No. Sambhav, no map question from world history. Sambhav, only from ancient. Map only from ancient. They are not asking question from medieval also. They can ask some question from medieval, but map only from ancient. Only from ancient. Right. So suppose if it is started in July, so it will take around 8 months. So we have a schedule and it will take around, है ना Suraj? Done बच्चे, clear? तो 150 सेशन होने चाहिए, 150 सेशन, राइट. अगर ब्रेक हो गया तो इट विल टेक 8 मंथ्स, राइट. बीच में अगर कोई छुट्टी नहीं हुई, राइट, अगर सब ठीक रहा, नॉर्मल रहा, हेल्थ ठीक रहा, तो इट विल टेक 7.5 months, लाइक दैट. चलेगा बच्चा? डन बच्चे, राइट. आइडिया इज नॉट टू कवर इट एनी हाउ. After completion of history optional, yes, Nisu, after completion of history optional you have to, right, revise factual information and you have to practice it for GS preliminary examination only, not for main. Nisu, you don't have to do anything for your main. Nisu, you don't have to do anything for your main, but yes, for preliminary you have to revise factual information and you have to practice question, objective question you have to practice. If you can do both, history optional would be beneficial. Fine, anyhow. So I told you that in ancient India you have map based question also, you have map based question also. Is that done? ठीक है बच्चा. Now what I would be doing right now, I am giving you a brief idea about the syllabus. I am giving you a brief idea about the syllabus, right? So coming to, right, ancient India, coming to ancient India. See,
In ancient India, you have 12 topics. In ancient India, you have 12 topics. Right? You have sources, you have prehistory and proto-history, then separately you have Indus Valley civilization, you have megalithic culture, then you have Vedic period, then you have period of Mahajanpadas, then you have Mauryan Empire, then you have post-Mauryan period, then you have, right, post-Mauryan period, some states of South India, Deccan, Eastern India, then you have Gupta period, then you have regional state during the Gupta period, and then you have themes. So you have 12 topics mentioned in the syllabus. You have 12 topics mentioned in the syllabus. Right? So, when we prepare history optional, we start our journey from, right, ancient India, we start our journey from sources. We start our journey from sources. And then we talk about prehistory. Then we talk about proto-history or Indus Valley civilization. Then we talk about, right, Vedic age. Then we talk about age of Mahajanpadas. Age of Mahajanpadas. Then we talk about, right, Maurya period. Then you prepare post-Maurya. Then we prepare Gupta. And after that, we prepare some themes. After that, we prepare some themes like how evolution of art, how evolution of literature, how evolution of philosophy, how evolution of, you can say, science and tech. And then we also prepare some South Indian history. South also we prepare. For example, we prepare, right, megalithic culture. Megalithic culture. We prepare Sangam age. We prepare Pallavas. We prepare Chalukyas. Right? So, in ancient India, हमारा अप्रोच क्या होगा बच्चे? हमारा अप्रोच क्या होगा? एंशिएंट इंडिया में हम शुरुआत करेंगे सोर्सेस से. वी विल स्टार्ट फ्रॉम सोर्सेस. वी विल डिवोट टाइम ऑन सोर्सेस. वी विल डिवोट अराउंड, राइट, 8 to 10 सेशन ऑन सोर्सेस. राइट, आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेस, है ना. जीएस में तो हम सोर्सेस पे इतना टाइम नहीं देते. क्या देते हैं बताओ निशु? है ना बच्चे? हम जीएस जब करते हैं तो सोर्सेस पर 8 या 10 सेशन देते हैं? नहीं देते. बट व्हेन वी प्रिपेयर एंशिएंट इंडिया, वी prepare sources, 8 to 9 session, 10 session, we devote on sources. We will talk about all the literary sources. Right? हम लोग जब sources की बात करेंगे, जब हम लोग sources की बात करेंगे, जो हमारा first topic होगा, right, that would be our first topic in ancient India. So we will talk about literary sources. We will talk about archaeological sources. Right? We will give example of all literary sources, religious, right, secular, then foreign accounts. तो हम इन सब का एग्जाम्पल देंगे. आर्कियोलॉजिकल,
फर्स्ट वी विल टेक अप एग्जाम्पल्स एंड देन हम लोग बात करेंगे दैट लिटरेरी सोर्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, है ना बच्चे। तो हम 8 से 10 सेशन बात करेंगे केवल सोर्सेस पर, जो कि जीएस में हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। और हम केवल जितने सोर्सेस हैं उसको कलेक्ट नहीं करेंगे कि रिलीजियस सोर्स ये सब है, सेकुलर लिटरेचर ये सब है, फॉरेन अकाउंट्स ये सब है, चाइनीज अकाउंट, अरब अकाउंट, राइट, ग्रीक अकाउंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में वी विल टॉक अबाउट राइट इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, monuments, potteries, right, everything। तो हम इन सारे सोर्स का एग्जाम्पल लेंगे और फिर कुछ डिबेट पे बात करेंगे। फिर हम सोर्सेस में कुछ डिबेट पे बात करेंगे, सोर्सेस में कुछ डिबेट पे बात करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, for your interest, how optional would be different from GS. Just for your example, suppose when we will be discussing some debate. Suppose debate number one. Debate number one is ancient Indians had no sense of history. Ancient Indians had no sense of history. Now you tell me, Waris is a history graduate. समीर जरा समझो मेरी बात को, कैसे जीएस से डिफरेंट होने वाला है हमारा ऑप्शनल का अप्रोच। जो हम लोग जीएस में पढ़ेंगे वो तो यहां पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो हम लोग जीएस में पढ़ेंगे बच्चे वो तो यहां पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो सारे इंफॉर्मेशन वो करेंगे। यहां पर हम लोग सारे देखेंगे, श्रुति देखेंगे, स्मृति देखेंगे, हम लोग श्रुति में वेद देखेंगे, अरण्यक देखेंगे, उपनिषद देखेंगे, स्मृति टेक्स्ट देखेंगे, सारे टेक्स्ट देखेंगे। लेकिन हम कुछ डिबेट के लिए भी जाएंगे। जैसे पहला डिबेट, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एंशिएंट इंडियंस हैड नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। कमेंट, यू कमेंट ओवर इट, जरा कमेंट करो तो बताओ तो, कमेंट। यू हैव ऑलरेडी डन जीएस और यू आर ऑलरेडी हिस्ट्री ग्रेजुएट। बताओ बच्चे, समीर बताएंगे, नीसू, वारिस। Ancient Indians had no sense of history. You have to comment. What would be your answer? Just I am giving you example that what we are going to do in optional. हम optional में क्या करने वाले हैं? Yes, Waris is saying Kalhan. Yes, Kalhan was a great historian. But he was an early medieval historian. Yes, Kalhan was the first historian. है ना वारिस? But Kalhan was a early medieval Kashmir historian. Of course, you are correct. One argument is ancient Indian had no sense of history. And second argument is no, they had sense of history. Right, they had sense of history. They had sense of history. So you must know why some historians say that they had no sense of history. Why they say no sense of history? Why we can say that no, they had sense of history? Suppose Waris ने कहा कि we have Kalhan. We have Kalhan. राइट क्या संभव?
अरे बताओ, वारिस ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास कलहन थे, कलहन हैड ए सेंस ऑफ हिस्ट्री. करेक्ट, करेक्ट. बट कलहन केम इन अर्ली मिडेवल इंडिया. बिफोर दैट, अरे वारिस, कलहन से पहले Indus civilization, we have no legible source. Sambhav is saying that we have source but they were destroyed. है ना Sambhav? Sambhav's argument is that we have source but these source they were destroyed. We have source but they have been destroyed. क्या Sambhav? You want to suggest this? Sambhav, are you suggesting this? Correct? That डैमेज हो गया है, हमारे पास सोर्स है लेकिन डैमेज हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है. मतलब ये स्टेटमेंट गलत है. That ancient Indians had no sense of history. You know who said it? Who said it? Ancient Indians had no sense of history. Al-Biruni said it. Al-Biruni said it, that they had no sense of history. Some colonial historian said it, that they had no sense of history. I hope you are getting it. अरे कहां हो? है ना बच्चे? So Al-Biruni said it. Some colonial historian said it, that ancient Indian had no sense of history. But this statement is not correct. Correct, Suraj? We had sense. Correct? We had Puranas, we had inscription, है ना? We had Puranas, हमारे पास पुराण है, हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, हमारे पास कॉइन्स है, हमारे पास सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है. राइट? तो हम इस डिबेट में जाएंगे कि हम क्या लिखेंगे. हम पहले बताएंगे कि व्हाई देयर वाज नो सेंस, व्हाई देयर वाज ए चार्ज दैट दे हैड नो सेंस. फिर हम बताएंगे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वी विल टॉक अबाउट रोमिला थापर, व्हाट इज कॉल्ड इतिहास पुराण ट्रेडिशन. Romila Thapar talked about ancient Indians had sense. Romila Thapar talked about right? She researched on that. Right? She talked about Itihas Puran tradition. Itihas Puran tradition. इतिहास पुराण ट्रेडिशन. है ना? हमें डायरेक्टली कोई हिस्ट्री है नहीं है, इनडायरेक्टली वी हैव सम सेंस. हमें माइथोलॉजी से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ना बच्चे? हमें माइथोलॉजी से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हिस्ट्री. तो मेरी बात समझे? तो इस तरीके का डिबेट भी हम डिटेल में करेंगे कि एंशिएंट इंडियंस को सेंस ऑफ हिस्ट्री था या नहीं था. हम आर्गुमेंट देंगे क्यों कहा जा रहा है कि दे हैड नो सेंस. फिर हम आर्गुमेंट देंगे कि दे हैड सेंस. वी विल टॉक अबाउट रोमिला थापर, वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट हिस्टोरियन. हम उन हिस्टोरियन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कहा कि हमारे पास हिस्ट्री थी, लेकिन हिस्ट्री हमें निकालनी पड़ती थी, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती थी. रामायण और महाभारत में भी हिस्ट्री है. यस, करेक्ट समीर. रामायण एंड महाभारत इज ऑल्सो ए इतिहास ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन. लेकिन पूरी रामायण, पूरी महाभारत हिस्ट्री नहीं है. क्या समीर? पूरी रामायण या पूरी महाभारत हिस्ट्री नहीं है. आई होप यू आर गेटिंग इट. पूरी रामायण हिस्ट्री नहीं है, पूरी महाभारत हिस्ट्री नहीं है. हमें उससे हिस्ट्री निकालनी पड़ती है. मतलब हमारे पास हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है, हमारा अपना ट्रेडिशन है, लेकिन यूरोपियन ट्रेडिशन या पर्शियन ट्रेडिशन से हमारा ट्रेडिशन डिफरेंट है.
मेरी बात समझ में आई? तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? हमारा कंक्लूजन हो जाएगा क्या संभव? हमारा कंक्लूजन होगा कि हमारी जो हिस्ट्री का ट्रेडिशन था वो अलग था, वो यूरोपियन ट्रेडिशन से अलग था, वो पर्शियन ट्रेडिशन से अलग था, लेकिन हमारा भी ट्रेडिशन था। बारिश, मेरी बात समझ रहे हो? हमारा भी ट्रेडिशन था, लेकिन हमारा ट्रेडिशन अलग था। अरे यूरोपियन कौन होते हैं बताने वाले? यूरोपियन कौन होते हैं बताने वाले कि हिस्ट्री यही है? हमारी हिस्ट्री की ट्रेडिशन अलग थी। हमारे रामायण महाभारत में भी हिस्ट्री है, हमारे पुराण में भी हिस्ट्री है, हमारी बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी हिस्ट्री है, हमारी बार्डिक ट्रेडिशन में भी हिस्ट्री है। तो हमारी हिस्ट्री अलग थी, हमारी परंपरा अलग थी, लेकिन हमारी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन थी। हम ये नहीं मान सकते कि हमारे पास हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे मेरी बात समझ में आई कि हम जब सोर्सेस पढ़ेंगे तो केवल सोर्सेस को कलेक्ट नहीं करेंगे, हम केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे कि लिटरेरी सोर्स ये है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये है, फॉरेन अकाउंट ये है। हम डिबेट में जाएंगे, हम डिस्कशंस में जाएंगे, हम आर्गुमेंट में जाएंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे। रोमिला थापर को यूज करेंगे, हिस्टोरियन को यूज करेंगे, उपिंदर सिंह को यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिद्धांत हो, समझ रहे हो? संभव? अरे समझ रहे हो? हम डिबेट की बात करेंगे, हम डिस्कशंस की बात करेंगे, हम कंक्लूजन समझेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा बेटर कंक्लूजन होगा। है ना? तो जब भी हम किसी टॉपिक पे जाएंगे, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम उस टॉपिक के इंफॉर्मेशन को भी समझेंगे, हम उस टॉपिक के इंफॉर्मेशन को भी समझेंगे। हम उस टॉपिक को अलग अलग सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड द टॉपिक। हम लोग उसके इंफॉर्मेशन को भी समझेंगे। जो आप जीएस में करते हैं हम भी करेंगे। क्या बच्चे, जो आप जीएस में करते हैं निशु, हम करेंगे। वो थोड़ी छोड़ देंगे। वो रिपीटिशन हो सकता है, हो सकता है जीएस में आपने ज्यादा कुछ पॉइंट किया हो सकता है ऑप्शनल में हम कुछ ज्यादा पॉइंट करें। तो हम इंफॉर्मेशन भी करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन केवल इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, हम टॉपिक को डिवाइड करेंगे, है ना। हम टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन में बांटेंगे। हम उस टॉपिक के डिबेट में जाएंगे। हम हिस्टोरियंस के ओपिनियन लेंगे, हिस्टोरियंस के व्यू हम लोग ऐड करेंगे, जो आप जीएस में नहीं करते। हम लोग टॉपिक को डिवाइड नहीं करते जीएस में, हम लोग अलग अलग डायमेंशन में नहीं करते। फिर उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे। हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पे जाएंगे कि कैन वी हैंडल ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नॉट। करेक्ट? अप्रोच समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं। हम लोग एंशिएंट इंडिया जब करेंगे तो एंशिएंट इंडिया को शुरुआत करेंगे सोर्सेस पर। हम सारे इंफॉर्मेशन पहले टॉपिक को डिवाइड करके सारे इंफॉर्मेशन को लेंगे। जो आप जीएस में करते हैं उसको जरा ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको जरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको लिखेंगे। सारी चीजें पीपीटी बेस्ड नहीं होंगी वारिस, हमें क्लास में लिखना होगा। पीपीटी का मिनिमम यूज होगा। मेरी बात समझ रहे हो निशु? पीपीटी का यूज करेंगे
जहां जरूरत है उसको करेंगे, कंटेंट के लिए करेंगे, लेकिन सिर्फ पीपीटी नहीं होगा. यू हैव टू राइट इन द क्लास, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, you have to interact in the class. Our approach would be slow. Our approach would be slow. Our approach would be right interaction based. Interaction based. हम interact करेंगे, discussion करेंगे. Discussion based. Discussion based. Our approach would be historians view based. Historians views based. है ना बच्चे? तो कुछ डिक्टेट भी करेंगे, राइट? ऑफ कोर्स कुछ डिक्टेट भी करेंगे, लेकिन ज्यादा डिक्टेशन नहीं, ज्यादा डिक्टेशन नहीं. वॉट एवर वी वुड बी राइटिंग इन द बोर्ड, यू हैव टू राइट इट. है ना बच्चे? जो हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे, आप उसको एलैबोरेट करोगे. जो दिक्कत होगी, आई विल टेल यू, यू विल राइट ऑन योर ओन. है ना? तो डिक्टेशन लेस प्लस यस अंडरस्टैंडिंग. जो कुछ भी हम लोग वहां लिखेंगे, यू वुड बी राइटिंग इट. है ना? इंटरएक्टिव अप्रोच होगा बच्चे, इंटरएक्टिव अप्रोच होगा. नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा. आई विल नॉट इंजॉय. स्टोरी टेलिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, डिबेट होगा, हिस्टोरियंस अप्रोच होगा, राइट? बोरिंग डिक्टेशन नहीं होगा. हां, स्लाइड पे कुछ चीजें जो होगी, यू हैव टू राइट इट. किसी किसी टॉपिक में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो ज्यादा स्लाइड होगी. करेक्ट वारिस? करेक्ट नीसू? राइट? बोरिंग नहीं होगा बच्चे. जब तक मुझ में ताकत है, बोरिंग नहीं होगा. अगर मैं बोरिंग हो रहा है तो इसका मतलब आज मेरी तबीयत खराब है ना? अगर बोरिंग हो रहा है तो इसका मतलब कि आज कुछ गड़बड़ है मेरे तबीयत के साथ. अदरवाइज मेहनत की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और आप बताओगे आंसर. यू विल गिव मी पॉइंट. मैं आपको शांत बैठने नहीं दूंगा बच्चे. तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे. फाइन. तो फाइन. तो हम लोग पहला जो टॉपिक करेंगे, जो हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा, वो क्या होगा? राइट? हमारा पहला क्या टॉपिक होगा? सोर्सेस. और सोर्सेस में हम सारे सोर्सेस की बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे. है ना बच्चे? सपोज एक डिस्कशन मैंने बताया आपको कि एंशिएंट इंडियंस लैक्ड हिस्टोरिकल सेंस. सपोज दूसरा डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं कि लिटरेरी सोर्स ज्यादा अच्छा है या आर्कियोलॉजिकल सोर्स. यह भी तो डिस्कशन का पार्ट है क्या? लिटरेरी सोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट और आर्कियोलॉजिकल सोर्स. क्या यह डिस्कशन नहीं हो सकता? क्या यह टॉपिक नहीं है? क्या यह क्वेश्चन नहीं पूछता है? बिल्कुल पूछता है. यूपीएससी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन. Right? So, there would be many discussion. Suppose second discussion I told you that literary source is more useful or archaeological source. What would be your answer? Suppose I want to listen on the basis of your preliminary knowledge. What you think? Literary source is more important or archaeological source? Archaeological source. Archaeological source is more authentic. है ना वारिस? Archaeological source, they are more authentic. You can rely upon them. They are the first hand information. Archaeological source generally are not biased, but literary source are biased. But we are dependent when we prepare prehistory and Indus Valley civilization. When we prepare these two topics, we are more dependent on archaeological source.
वी डोंट हैव लिटरेरी सोर्स हियर, है ना। तो प्री हिस्ट्री के लिए, आईवीसी के लिए हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं है, तो भी दिक्कत है कि नहीं है। जहां केवल लिटरेरी सोर्स है तो भी दिक्कत, जहां केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्स है तो भी दिक्कत। ज्यादा रिलायबल है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, अग्रीड, लेकिन प्री हिस्ट्री और आईवीसी बिना लिटरेरी सोर्स के बोरिंग हो जाती है कि नहीं हो जाती है। मुझे बताओ तो जरा ऑनेस्टली, मुझे ऑनेस्टली बताओ कि प्री हिस्ट्री और आईवीसी क्या संभव, समीर, बिना लिटरेरी सोर्स के? वी हैव मोर आर्कियोलॉजी हियर प्री हिस्ट्री, वी हैव मोर आर्कियोलॉजी इन प्रोटो हिस्ट्री। तो बिना लिटरेरी सोर्स के ये दोनों एरिया हमारे लिए बोरिंग हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमारा क्या प्रयास होता है, हिस्टोरियन का क्या प्रयास होता है? वी नीड बोथ, है ना। वी नीड बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स। इफ यू हैव ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, है कि नहीं। इफ यू हैव ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स, you don't know anything about, clearly about society, polity, religion. So हमारी समस्या यह है कि हमें दोनों चाहिए। हम एक दूसरे को टेस्ट करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो बात है, लिटरेरी सोर्स में जो बात है, दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है कि नहीं है। अगर दोनों मिल गया तब तो हिस्ट्री हो गई। तो हिस्ट्री क्या है? अगर दोनों सोर्स एक बात कहता है तो वो हिस्ट्री है। क्या निशु, अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स दोनों एक ही बात कहता है तो हम लोग कह देंगे कि ये हिस्ट्री है, अदरवाइज स्टोरी है, अदरवाइज हाइपोथेसिस है ना। सपोज आपको कुछ मिला प्री हिस्ट्री में, राइट, प्री हिस्ट्री में आपको नवदा तोली से कुछ मिला, यू फाउंड समथिंग फ्रॉम नवदा तोली, सो दिस कैनॉट बी, राइट, वन इंडिकेशन ऑफ एनीथिंग दैट ओके एग्रीकल्चर वॉज डन और एनीथिंग वॉज डन। तो हिस्टोरिकल फैक्ट बनने के लिए हमारे पास दोनों सोर्स होना जरूरी है। अगर केवल लिटरेचर बेस्ड है तो वो केवल स्टोरी हो जाएगी, अगर वो केवल आर्कियोलॉजिकल बेस्ड है तो वो केवल हाइपोथेसिस हो जाएगी। अगर दोनों सोर्सेस से मेल खा गया तब वो हिस्टोरिकल फैक्ट बन जाएगा। तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी सोर्स भी, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी। जहां दोनों मिलता है वहां ज्यादा मजा आता है हिस्ट्री समझने में, है ना। और जहां दोनों नहीं मिलता है वहां कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, हाइपोथेसिस, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, है कि नहीं बच्चे। अगर कोई पूछता है कि लिटरेरी और आर्कियोलॉजी दोनों में से कौन बेहतर, तो ज्यादा बेहतर ऑफकोर्स माना जाता है आर्कियोलॉजी, बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों सप्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे को मदद करता है ना। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? है ना। तो हम लोग सोर्सेस में क्या करने वाले हैं, हम लोग सोर्सेस वाले टॉपिक में समझने वाले हैं कि अलग अलग सोर्सेस क्या है, उसका क्या लिमिटेशन है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हाउ इट कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स। दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन दैट, है ना। क्वेश्चन इसी सब से पूछा जाता है। फाइन।
हम लोग पहले सोर्सेस करेंगे, फिर प्री हिस्ट्री करेंगे, फिर आईवीसी करेंगे। और जब ये प्री हिस्ट्री करेंगे, आईवीसी करेंगे, तो हम लोग मैप राइट वाले साइट्स पे भी फोकस करेंगे, है ना। दे आर आस्किंग पैलियोलिथिक साइट, मेजोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट, दे आर आस्किंग हड़प्पन साइट। तो यहां भी हम मैप साइट्स पे भी फोकस करेंगे। सोर्सेस में मैप पे नहीं फोकस करेंगे, यहां देर इज नो मैप, हियर देर इज नो मैप। बट व्हेन वी विल टेक अप प्री हिस्ट्री, हम लोग प्री हिस्ट्री की बात करेंगे, हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे, हम लोग मेसोलिथिक एज की बात करेंगे, हम लोग नियोलिथिक एज की बात करेंगे, हम लोग चैल्कोलिथिक एज की बात करेंगे, और हम लोग मैप को भी प्रिपेयर करेंगे, है ना बच्चे। जितने भी पैलियोलिथिक साइट है, जितने भी मेसोलिथिक साइट है, जितने भी नियोलिथिक साइट है, हमें उसको मैप पे भी देखना पड़ेगा। जीएस में हम उतना सीरियसली मैप नहीं देखते, क्या करते हैं कि नहीं ऐसा बताओ मुझे। हम 4-5 साइट केवल पढ़ लेते हैं कि ये नियोलिथिक है, ये पैलियोलिथिक है, ये मेसोलिथिक है, लेकिन हम उतने तरीके से, उतना डिटेल में उस साइट पे काम नहीं करते, है ना सिद्धांत। तो हम पहले सोर्सेस पे काम करेंगे, सोर्सेस में डिबेट पे काम करेंगे, रोमिला थापर की बातों को समझेंगे, उपिंदर सिंह की बातों को समझेंगे, फिर हम प्री हिस्ट्री में आएंगे, प्री हिस्ट्री के सारे एज का फीचर समझेंगे। पैलियोलिथिक एज का क्या मतलब होता है, फीचर क्या होता है, मेसोलिथिक एज का क्या फीचर होता है, नियोलिथिक एज का क्या फीचर होता है, चैल्कोलिथिक एज का क्या फीचर होता है, इसके टूल्स क्या क्या हैं, हम इसके टूल्स पे जाएंगे, टूल्स कैसे कैसे थे, कैसे डेवलप हुए। उसके बाद हम मैप वाले साइट पे जाएंगे। सिद्धांत, हमारा फोकस ऑप्शनल के लिए, जब हम प्री हिस्ट्री करेंगे, जब हम हड़प्पन करेंगे, तो हमारा फोकस साइट पे होगा। जीएस में हम लोग साइट पे ध्यान नहीं देते थे, जीएस में हम साइट पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हम इस पर साइट पे ध्यान देंगे। फाइन। तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे, हम लोग कैसे बढ़ेंगे बच्चे। तो हम लोगों ने बताया कि राइट, हम लोग पहला जो एंसेंट इंडिया जब करेंगे, जब हम एंसेंट इंडिया करेंगे, जब हम एंसेंट इंडिया करेंगे तो सबसे पहले सोर्स करेंगे, है ना। बहुत टाइम देंगे सोर्सेस पर, है ना। तो सोर्स में मैप पे काम नहीं करेंगे, यहां पर डिबेट, यहां इंफॉर्मेशन होगा, यहां इंफॉर्मेशन होगा, डिबेट होगा, यहां पर मैप नहीं होगा, यहां पर मैप नहीं होगा, सोर्सेस में मैप नहीं होगा। जब हम प्री हिस्ट्री पे काम करेंगे, जब हम प्री हिस्ट्री पे काम करेंगे, तो यहां पर इंफॉर्मेशन होगा, थोड़ा बोरिंग इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन होगा, यहां पर डिबेट नहीं होगा, यहां पर डिबेट नहीं होगा। एक ही डिबेट है कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का राइट रिवॉल्यूशन था या नहीं, राइट। सो दैट डिबेट इज देयर, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के बारे में एक डिबेट है, लेकिन जनरली इसमें डिबेट कम होगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम मैप पे बहुत काम करेंगे, मैप हमारे लिए जरूरी होगा, मैप की प्रैक्टिस खूब करेंगे। जब हम प्रोटो हिस्ट्री में आएंगे, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएंगे, तो यहां पर इंफॉर्मेशन भी होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स की मदद से, और यहां पर फिर से डिबेट होगा, यहां पर फिर से डिबेट होगा। क्या क्या डिबेट होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या इंडस वैली में यूनिफॉर्मिटी थी, यूनिफॉर्मिटी थी, क्या इंडस वैली का डिक्लाइन कैसे हुआ, है ना। तो इंडस वैली में भी बहुत सारा डिबेट होगा। फिर हम वैदिक पे आ जाएंगे, वैदिक पे आ जाएंगे,
फिर एक लिंक होगा कि इंडस वैली और वैदिक में लिंक क्या है, इस पर डिबेट है, इस पर डिबेट है कि दोनों के बीच में लिंक क्या है। हम लोग कहते हैं कि 1500 बीसी में वैदिक एज शुरू हो गया और अराउंड 600 बीसी तक वैदिक एज चला। तो क्या आर्यंस इसी समय में आए थे? आर्यंस कौन थे? हु वेर आर्यंस? कहां से आए थे आर्यंस? हिस्टोरियन क्या समझते हैं? क्या वैलिड व्यू है? क्या यह आंसर दिया जा सकता है या आंसर नहीं दिया जा सकता है? सो हु वेर आर्यंस? कहां से आए आर्यंस? कब आए आर्यंस? सो यू हैव डिबेट। तो हम लोग इंफॉर्मेशन पे भी बात करेंगे, टॉपिक को समझेंगे, डिबेट डिस्कशन पे भी समझेंगे, बात करेंगे, जो हम जीएस में नहीं करते। वैदिक में मैप नहीं है। हियर यू डोंट हैव मैप। यहां पर मैप नहीं है। हम इसको दो भागों में बांट देंगे, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। हम इसकी सोसाइटी को समझेंगे, इकोनॉमी को समझेंगे, पॉलिटी को समझेंगे, रिलीजन को समझेंगे। सो यू विल प्रिपेयर वैदिक, है ना बच्चे? तो वैदिक में मैप नहीं है। मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? जो किस टॉपिक में हमें किस बात पर ज्यादा फोकस करना है। हम वैदिक में मैप पे फोकस नहीं करेंगे, हम सोर्सेस में मैप पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें हम मैप पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसपे हम मैप पर ज्यादा फोकस करेंगे। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यह समझना बड़ा जरूरी है बच्चे कि हमें किस टॉपिक पे, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, कहां डिबेट पे फोकस करना है, कहां इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, कहां पर मैप पे फोकस करना है ना? कहां पर हिस्टोरियन का व्यू इंपॉर्टेंट होगा, कहां पर हिस्टोरियन के व्यू का इंपॉर्टेंस नहीं है ना? वैदिक पीरियड में सपोज हम लोग बात करेंगे कि वर्ण सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, वर्ण सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। वैदिक पे हम बात करेंगे कैसे किंगशिप इवॉल्व हुआ, है ना? वैदिक पीरियड में हम बात करेंगे कि रोल ऑफ आयरन क्या था, रोल ऑफ आयरन क्या था, आयरन ने क्या चेंज किया, जिसको श्याम अयस कहते हैं, श्याम अयस कहते हैं। तो आयरन के आने से क्या हुआ, क्या आयरन ने क्या परिवर्तन कर दिया, क्या चेंजेस कर दिया। तो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस, फाइन। तो सोर्सेस, प्री हिस्ट्री, इंडस वैली, फिर हम लोग वैदिक पे बात करेंगे। वैदिक के बाद बच्चे हम बात करेंगे एज ऑफ महाजनपदास की, 6th सेंचुरी बीसी, एज ऑफ महाजनपदास, एज ऑफ महाजनपदास की बात करेंगे। और एज ऑफ महाजनपद में हम किसकी किसकी बात करेंगे? हम लोग अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे अर्बनाइजेशन पर, हम लोग बात करेंगे मगध के राइज पर, हम लोग मगध के राइज पे बात करेंगे, हम लोग इस पीरियड में बात करेंगे बुद्धिज्म पर, हम इस पीरियड में बात करेंगे जैनिज्म पर, इस पीरियड में बात करेंगे मोनार्की और रिपब्लिक पर, मोनार्की एंड रिपब्लिक, है ना? तो हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। जब हम एज ऑफ महाजनपद में जाएंगे तब हम सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, हम बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करेंगे, मगध के इंपेरियलिज्म की बात करेंगे, रिपब्लिक और मोनार्की का डेवलपमेंट समझेंगे, है ना? तो हम इस चैप्टर में इन सब चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमारा फोकस ये सारा टॉपिक होगा, है ना? और उसके बाद हम एंशिएंट इंडिया का पहला इंपायर, फर्स्ट इंपायर ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे। फर्स्ट इंपायर ऑफ एंशिएंट इंडिया वो क्या था? मौर्यन इंपायर।
मौर्यन इंपायर की बात करेंगे, है ना, मौर्यन इंपायर की बात करेंगे। और मौर्यन इंपायर में हम देखेंगे कि रूलर्स के बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। मौर्यन इंपायर में हम देखेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। मौर्यन इंपायर में देखेंगे अशोका के धम्म के बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। यह सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मौर्यन इंपायर में हम देखेंगे कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ गई, इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ गई, है ना। फिर हम देखेंगे कि डिक्लाइन कैसे हो गया मौर्यन इंपायर का, इतना पावरफुल इंपायर कैसा डिक्लाइन कैसे हो गया। हम देखेंगे कि फॉरेन रिलेशन कैसा था, है ना, फॉरेन रिलेशन कैसा था इस पीरियड में। तो ये सारी टॉपिक हम मौर्यन पीरियड में देखेंगे। ये पहला इंपायर होगा हमारा, ये हमारा पहला इंपायर होगा मौर्यन इंपायर। तो मौर्यन इंपायर में हम इन सब चीजों को देखेंगे। तो मौर्यन इंपायर के साथ अच्छा क्या है जानते हो सिद्धांत? मौर्यन इंपायर के साथ अच्छा यह है कि हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है। हां, सप्तांगा थियरी ऑफ स्टेट देखेंगे, कौटिल्य के बारे में जानेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइजेशन है, ब्यूरोक्रेसी है। तो मौर्यन इंपायर के बारे में इतनी बातें हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी है खूब सारा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है खूब सारा, फॉरेन अकाउंट्स भी खूब सारा है। तो हमारे पास सफिशिएंट सोर्स है, हमारे पास सफिशिएंट सोर्स है ना। तो लगभग 300 बीसी से 200 बीसीई तक हम इस पीरियड को देखेंगे। उसके बाद हमारा फोकस हो जाएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड, इस पीरियड में क्या होगा बच्चे? इस पीरियड में इन्वेजन होगा, फॉरेन इन्वेजन होगा। इसमें इंडो ग्रीक आएंगे, इसमें राइट कुषाण आएंगे, इसमें सकाज आएंगे, पार्थियन आएंगे, इन्वेजन होगा। इस पीरियड में ट्रेड का डेवलपमेंट होगा, खूब सारा डेवलपमेंट होगा ट्रेड का, कॉइन्स का डेवलपमेंट होगा, कॉइन्स का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में फॉरेन इन्वेजन होगा, ट्रेड होगा, कॉइन्स होगा। तो हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बात करेंगे। और इसी पीरियड में हम बात करेंगे सातवाहन की, संगम एज की, है ना, संगम एज की बात करेंगे, सातवाहन की बात करेंगे। इसी पीरियड से पहले साउथ इंडिया में आयरन एज में मेगालिथिक कल्चर था, हम उसकी बात करेंगे। तो हम इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में। फाइन। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेड रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड। मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड में इकोनॉमी में खूब सारी डेवलपमेंट हो रही थी। आपने सुना होगा गिल्ड सिस्टम, श्रेणी सिस्टम, तो गिल्ड का भी डेवलपमेंट हो रहा था। सातवाहन एक अलग टॉपिक है, संगम एज एक अलग टॉपिक है। ये सब डेवलपमेंट पोस्ट मौर्यन पीरियड में हो रहा था। और उसके बाद एंशिएंट इंडिया का सबसे क्लाइमेक्स होता है गुप्ता पीरियड, है ना। हम लोग गुप्ता पीरियड को देखेंगे कि कैन वी कॉल इट गोल्डन पीरियड, कैन वी कॉल इट गोल्डन पीरियड। हम लोग इस डिबेट में जाएंगे। हम गुप्ता पीरियड और गुप्ता के कंटेम्पोररी जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं हम उनको देखेंगे। हम उनकी पॉलिटी देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे और देखेंगे कि कैन वी कॉल इट गोल्डन पीरियड। एंड देन आफ्टर गुप्ता पीरियड you will see that in the post Gupta period we have Harshvardhan, and then in south you have Pallavas, then in south you have Chalukyas. तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्थ में हम हर्षवर्धन को देखेंगे फ्रॉम 606 AD टू 647 AD। हम पल्लवा को देखेंगे, हम चालुक्या को देखेंगे। और जब हम इन सारे चैप्टर के बारे में बात कर लेंगे, निशु मेरी बात समझो, जब हम इन सारे चैप्टर के बारे में बात कर लेंगे उसके बाद बात करेंगे थीम्स की, उसके बाद बात करेंगे थीम्स की। क्या बात करेंगे कि एंशिएंट इंडिया में आर्ट और आर्किटेक्चर
आर्ट और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंशिएंट इंडिया में फिलॉसफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना, एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, है ना, एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम इन सारे थीम्स पे बात करेंगे। एंशिएंट इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जब हम एंशिएंट इंडिया के सारे टॉपिक पे बात कर लेंगे तो हम सारे थीम्स पे बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, कि एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिलॉसफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये अलग से पढ़ेंगे, अलग से इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। और बीच बीच में हम प्रैक्टिस भी करेंगे मैप का, 7-8 साइट्स हम लोकेट करते रहेंगे बीच बीच में। फाइन, तो इस तरीके से हम एंशिएंट इंडिया करेंगे, फाइन। नाउ एंशिएंट इंडिया के लिए हमारे पास क्या क्या पढ़ना जरूरी है बच्चे। तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, विच यू ऑलरेडी रीड, राइट। इफ यू कैन रीड द ओल्ड एनसीईआरटी, द ओल्ड वन, राइट, बाय आर.एस. शर्मा, है ना, जो कि रिपब्लिश हुई है अलग पब्लिशर के थ्रू, आर.एस. शर्मा। सो बेटर। तो जीएस के लिए भी हम पढ़ते हैं आर.एस. शर्मा। नई भी पढ़नी है, न्यू भी पढ़नी है, लेकिन ओल्ड इज मोर सिस्टमेटिक, जो रिपब्लिश हुई है आर.एस. शर्मा की। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर एंशिएंट इंडिया इज उपिंदर सिंह, न्यू एडिशन। उपिंदर सिंह, न्यू एडिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज उपिंदर सिंह, न्यू एडिशन, है ना। हमारी पूरी एंशिएंट इंडिया की सिलेबस कंप्लीट हो जाती है उपिंदर सिंह से। यह सबसे बेहतर किताब मानी जाती है, सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है एंशिएंट इंडिया के लिए। तो यू कैन, अगर आपने परचेज नहीं किया है तो यू कैन परचेज द न्यू एडिशन। एंशिएंट इंडिया के लिए यह बेस्ट किताब मानी जाती है। इसके अलावा कुछ इग्नो मटेरियल है, लेकिन बट वी विल बी डूइंग इन द क्लास नोट्स। तो इफ यू हैव क्लास नोट्स and you have already gone through NCERT and you are actually referring to Upinder Singh, you can manage Ancient India. हम लोग मिलके Ancient India मैनेज कर लेंगे। Is that fine? करेक्ट। तो एंशिएंट इंडिया में आपको, अगर आपने कोई भी बुक नहीं ली है, इफ यू हैव नॉट परचेज्ड एनीथिंग, देन ओनली बुक यू नीड इज उपिंदर सिंह, न्यू एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेस्ट डोंट वरी, वी वुड बी डेवलपिंग, वी वुड बी यूजिंग उपिंदर सिंह ऑल्सो, इग्नो मटेरियल ऑल्सो, and all the relevant text. Is that fine? तो एंशिएंट इंडिया के लिए रीडिंग मटेरियल क्या है, एंशिएंट इंडिया का सिलेबस क्या है, एंशिएंट इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज क्या है, हम लोगों ने ये बात की। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ भी जो आप पूछना चाहो। यस, हम लोगों ने आज समझा बच्चे कि एंशिएंट इंडिया का सिलेबस क्या है, कैसे ये जीएस से डिफरेंट होगा, क्या हमारा अप्रोच होगा,
और एंशिएंट इंडिया में हमें क्या पढ़ना है? Yes, anything you want to ask, any question you have. Nisu, Sameer, Siddhant. पूछो बच्चे। आज हमने केवल एंशिएंट इंडिया की बात की। अप्रोच टू आंसर राइटिंग। So I told you approach to answer writing. Suppose if they ask you, so gradually whenever we will be discussing previous year question. No बच्चे, you don't have to cover right now. So of course it is required for GS also. लेकिन हम लोग ऑप्शनल में भी वो बात करेंगे, समीर, I told you, suppose I gave you an example of ancient Indians lacked historical sense comment. So what would be your approach of answer writing? You will write introduction, then you will write argument for, argument against, then you will write conclusion. So whenever you are we are discussing any previous year question, I will give you a approach, I will give you a structure. है ना समीर? तो जब हम लोग टॉपिक पढ़ लेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको एक अप्रोच दूंगा कि इस क्वेश्चन में हम इस स्ट्रक्चर से डेवलप कर सकते हैं। यस, एनीथिंग मोर? कुछ और पूछना है? एंशिएंट इंडिया का एक आइडिया डेवलप हुआ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग कैसे करेंगे क्लास में, और एक ही रेफरेंस बुक है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, एंशिएंट इंडिया का क्लास नोट्स बच्चे काफी तो होगा, बट थोड़ा सा अगर आप रीड करेंगे तो बेटर लिखेंगे, है ना, लैंग्वेज थोड़ा अच्छा होगा, है ना सौरभ? तो ऑफ कोर्स क्लास नोट्स हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सफिशिएंट हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए थोड़ा, कि लैंग्वेज बेटर होगा, एक्सप्रेशन बेटर होगा, प्रेजेंटेशन बेटर होगा, है ना। क्लास नोट्स आपको कंटेंट दे देगा, क्लास नोट्स आपको एक आइडिया दे देगा, एक कंटेंट दे देगा, एक बेसिक पॉइंट दे देगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बुक ना देखें, बाद में जाके आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। फाइन सौरभ? anything you want to ask in ancient India? So today I devoted time on ancient India. आज हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया का एक इंट्रोडक्टरी सेशन किया, एक आइडिया लिया। संभव, सौरभ, कुछ आइडिया लगा एंशिएंट पर? फाइन। नहीं बच्चे, अभी आपको उपिंदर सिंह नहीं पढ़ना है। सिद्धांत, डोंट स्टार्ट उपिंदर सिंह, राइट? जब तक, अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले एनसीईआरटी करोगे एंड देन यू विल गो फॉर उपिंदर सिंह, है ना। उपिंदर सिंह को पहले नहीं पढ़ना है, अदरवाइज यू विल लूज योर इंटरेस्ट, है ना। उपिंदर सिंह में बहुत ज्यादा फैक्ट है और हमें पूरा उपिंदर सिंह नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चे? हमें पूरा उपिंदर सिंह नहीं करना है, हमें उपिंदर सिंह को यूज करना है। मेरी बात समझो,
हमें उपिंदर सिंह को यूज करना है, उसको रेफर करना है, हमें पूरा उपिंदर सिंह नहीं करना है ना। तो अभी उपिंदर सिंह को राइट कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बाद में उसको यूज करोगे। पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर क्लास देख लेना, उसके बाद फिर आप उसको यूज करना। डन। सो टुमारो in a short session we will try to discuss medieval India and modern India, है ना। हम लोग medieval और modern की बात करेंगे tomorrow. Is that fine? चलेगा। हम लोग medieval और modern के सिलेबस को समझेंगे, अप्रोच को समझेंगे, स्ट्रेटजीज को समझेंगे, medieval and modern को, and then in the next session world history, and then we will start the topic. Fine. So in introduction session, so there is less thing to share, but I hope you right enjoyed this session. Fine. And at least got some important relevant point. ठीक है। तो कल हम लोग मिडिवल इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के अप्रोच को, सिलेबस को समझते हैं। क्या ठीक? ओके देन, सो वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू।